Now in the last lecture we study the simple integration. How will you take the integrable functions? How will you differentiate any function and then integrate? Standard form में हमने कैसे लाया था? So last time we will study. We already studied that. That is exercise 3.1. Now today we will study the methods of integrations. Now there are some methods through which we solve different kinds of integrations, integrals. जो भी कुछ integrals दिए होंगे उसको different forms में अगर हमको सबसे main तुम्हारा एक method होता है that is called substitution method. उसके बाद आती है integration by parts का method आता है, उसके बाद partial fraction का method आता है. Okay? Now in this time, in that topic we will cover the method of, there are three methods. So first method is method of substitution. Now strongly for this method हमको डेरिवेटिव करते ही आना चाहिए. इंटीग्रेशन के लिए हमको हमेशा डेरिवेटिव करते आना चाहिए, लेकिन इस स्पेशल मेथड के लिए या यहाँ से बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से हमको डिफरेंशिएशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए और उसके बाद इंटीग्रेशन तो हमको आना ही चाहिए. ओके, नाउ जस्ट वी कैन ट्राई दैट व्हाट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में द फर्स्ट वन इज दैट इज द थ्योरम वन. इट इज इफ x is the differentiable function of t, x is equal to phi, t is the differentiable function of t, then integral of fx dx is equal to what? That is integral of f of phi t into phi dash t. phi की जगह हम g भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That is the theorem first. That is the all about method of substitution. We will prove this. Okay. So what? We will prove this first of all and try to understand what is the things we can understand here, and then we can solve it here. Now here simply just given terms are x is equal to phi t is the differentiable function of t. Now if x is equal to phi t, then you can easily differentiate it. Differentiate with respect to t यानी dx by dt होगा, इसका डेरिवेटिव होगा phi dash t. That is what? Phi dash t. Then what? Let consider integral of fx dx is gx. Consider it. Integral of f of x dx is equal to what? gx. Now according to the definition of integration, क्या definition होगा? So what? Therefore the derivative of gx is equal to what? f of x is equal to what? f of x. ये तो हमने ध्यान में ले लिया है. जैसे डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की डिफिनेशन क्या है? इफ इंटीग्रल ऑफ f ऑफ, यहाँ पे उल्टा ले लो, derivative of gx is equal to fx, then integral of fx is equal to what? gx. Then what is the derivative of gx? gx का derivative क्या होगा? That will be, now consider that derivative of gx का derivative, that will be g dash x. That will be what? g dash x. अब g dash x अगर derivative हो गया into डेरिवेटिव ऑफ gx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ gx क्या हुआ? दैट इज fx. ये अगर ले लिया हमने f of fx इंटू अब d by dt. ओके, नाउ हियर, नाउ देयरफॉर d by dt of gx, डेरिवेटिव ऑफ gx with respect to t, that will be derivative of g of x into derivative of x, क्योंकि यहाँ पे t यहाँ पे x है,
then derivative of gx is equal to what? F of x into dx by dt. Just try to put the value. Now d by dx of what? t by dt of gx is equal to क्या मिला हमको? f of x into dx by dt. दोनों की वैल्यू हमें पता है, दैट इज dx by dt की वैल्यू phi dash t है और इंटीग्रल ऑफ f of x की वैल्यू g of x है. सो देन वी कैन राइट इंटीग्रल f of x की वैल्यू क्या है? दैट इज d by dx of g of x. Now we will try this. So f of x into dx by dt. x की वैल्यू है तुम्हारी phi dash t. So f of phi dash t into dx by dt की वैल्यू है phi dash t. Okay, now derivative of this is equal to this. So integral of this term will be equal to gx. Okay, so by definition of integration, integral of this, so integral of f of phi t into phi dash t, इंटीग्रल लिया तो विद रिस्पेक्ट टू t is equal to what? g of x. Okay, and we know g of x is equal to what? G of x is equal to what? Integral of f of x plus c. तो इसको पहले लिख दो. Therefore integral of f of x dx is equal to what? Integral of f of phi t into phi dash t into what? dt. Now here एक बात ध्यान में रख दो. What is given? एकदम से समझ में नहीं आएगा, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. x क्या है? फंक्शन ऑफ t. Now we differentiate any function with respect to t. A function of t है differentiable t से हो सकता है. dx by dt is equal to phi dash t. Confirm? Now we can consider one term. अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अगर जी एक्स है तो जी एक्स का डेरिवेटिव होगा तुम्हारा एफ एक्स. क्लियर है? नाउ देन वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. जी एक्स को टी से डिफरेंशिएट किया, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन हमने यूज किया. दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी एंड देन एफ एक्स. इसका मतलब होता है एफ एक्स इज इंटू डी एक्स बाई डी टी. Then we put the value and then use the definition of integration. So what will we get? We get the theorem. That is the first theorem of this chapter. And from this theorem, we can prove the so many results here, which are very, very useful in the problem evaluation. Problem evaluation मध्ये आपल्याला में हमको हमेशा वो results की जरूरत पड़ने वाली है. अब हम उसको प्रूव नहीं करते बैठेंगे, हम उसको डायरेक्टली लिखने की ट्राई करेंगे. नाउ द फर्स्ट रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इफ इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इस टाइप का हो, फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल हो, उसी तरह से हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहिए. तो क्या होगा? दैट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी. डायरेक्टली वी कैन यूज्ड. ओके, नाउ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी फॉर्म को ध्यान में रखना है. नाउ नंबर 2, वन मोर कोरोलरी और वन मोर रिजल्ट दैट वी विल डिस्कस. सो डेरिवेटिव ऑफ, so integral of fx to the power n into f dash x, ऐसा अगर हो तो हम क्या लिखेंगे? ये हमको पता है, x to the power n. So that will be fx to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. That will be again one result. One more result, number third one. So third result is that will be integral of, where is the third? Yes, where is the third? Now that is the first one, पर हम फोर्थ में ले लेंगे उसको. चलो,
इफ इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, अंडर रूट में अगर होगा दैट विल बी 2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, एंड द फोर्थ वन विच इज द फर्स्ट वन, इफ डी बाई डी एक्स, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो जो हमने पहले लेक्चर में लिया था उसी तरह का रिपीट करना है. अगर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ना हो, ए एक्स प्लस बी हो, सो व्हाट विल वी डू, वी डू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन व्हाट, ए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, विच इज ए, प्लस व्हाट, सी. सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 4. These all 4 results we can use and try to solve the problems from the exercise 3.2a. Okay, so before this we make some results here. जैसे हमको we don't know the integral of tan x, we don't know the integral of tan x. Now what is the integral of tan x? चलो बोलते हो I is equal to integral of tan x. We try to use these results. Integral of tan x, so we can write sin x upon cos x dx. Okay, now what is the integral of tan x? So integral of sin x upon cos x, what is the derivative of sin x, sorry, derivative of cos x. अब देखो, एक तो रिजल्ट यूज करो और वी गॉट द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन मेथड में हम पर्टिकुलर मेथड से भी जा सकते हैं. जैसे हमने बोला कि cos x को पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा. ठीक है, सो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी होगी. ठीक है, माइनस इधर आ गया, सो साइन एक्स डी एक्स एन ए माइनस डी टी हुआ, कॉस एक्स एन ए टी हुआ. सो हमारा आई क्या बना, इंटीग्रल ऑफ, ये हुआ माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स को मिलेंगे हम टी. ओके, अब इसको लिखेंगे हम ढंग से. सो आई इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे 1 बाई टी डी टी. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हुआ, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी. सो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है cos x, सो cos x प्लस सी. सो माइनस 1 है यहाँ पे तो पावर में गया, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x टू द पावर माइनस 1 प्लस सी. सो cos x टू द पावर माइनस 1 का मतलब हुआ इनवर्स नहीं, हमको इसका मतलब लेना है log ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस सी, एंड देन दैट विल बी log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी. ये किसकी वैल्यू हुई, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ tan x. सो इंटीग्रल ऑफ tan x की वैल्यू हुआ log ऑफ मॉड ऑफ sec x. ये मेथड हमको ध्यान में आनी चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सब्सटीट्यूशन. ये जो भी है यही है. अब इसको हमने इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, ये पहला. तो हमको क्या करना होता, हमको cos x का डेरिवेटिव चाहिए था इन द न्यूमरेटर, क्योंकि f डैश x अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश x. अगर डेरिवेटिव f डैश x है तो यहाँ पे होना था माइनस, तो माइनस साइन x कर देते, तो यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते. ओके, उससे सॉल्व कर देंगे. जैसे यहाँ पे माइनस एडजस्टमेंट किया, माइनस 1 यहाँ पे लिया और माइनस साइन एक्स लिया अपॉन कॉस एक्स लिया, डी एक्स कर दिया. दैट विल बी माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स टी एक्स. देखो ये फॉर्म में आ गया, ये कॉस एक्स से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स यानी उसका डेरिवेटिव एफ एक्स अपो उसका ऊपर डेरिवेटिव चाहिए. तो इसका आंसर क्या हुआ देता, आई इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी. ठीक है, जैसे यहाँ पे आया डायरेक्टली देखो दिस वन.
सो ये दोनों मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर तुमको बोला है कि कॉट एक्स का निकालो, कॉट एक्स का क्या होता, तो यहां पे होता cos x अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, एफ डैश एक्स है, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अवेलेबल हियर, सो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, -1 की जरूरत नहीं है, सो दैट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सो इसका यूज हमेशा हमको करते आना चाहिए, दैट इज द फाइनल वर्ड्स। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट का हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाओगे तुम, तो तुमको इंटीग्रेशन में इजीली तुम प्रॉब्लम्स कवर कर पाएंगे। ओके, नाउ इन द टेक्स्ट बुक वहां पे वो भी दिया है कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स एज वेल एज कोसेक एक्स, तो वो तुमको पढ़ लेना है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स। ओके, then we must try some examples from that exercise, which is 3.2a. so we try to get the first one, that is log x to the power n upon x. now first one, method of substitution में exercise 3.2a, so that is exercise 3.2a. so the first one, first question is integrate the following with respect to x. We have to integrate it, log of x to the power n upon x. so we try to write this. शुरुआत की कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, थोड़ा ध्यान में रख देना है। अगर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके उसको समझना है, समझोगे नहीं तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके समझोगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करो। सो उस तरह के प्रॉब्लम्स तुमको हमेशा आने चाहिए। सो दिस इज द बेसिक वन। सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द पावर n अपॉन x dx। नाउ ध्यान रखना है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना हो तो डेरिवेटिव भी अवेलेबल होना चाहिए, वहीं पे डेरिवेटिव होगा, फंक्शन एफ एक्स भी होगा और एफ डैश एक्स भी होगा, एक फंक्शन भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल होगा। ऐसा हमको फंक्शन दिखता है log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो ऑब्वियसली हम उसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, log x टू द पावर n इंटू 1/x dx। वी कैन राइट दिस, जो भी डेरिवेटिव होगा वो dx के साथ में लगा दो। सो अगर हमने log x को ले लिया, पुट log x इज इक्वल टू t, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो 1/x होगा इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। सो 1/x dx इज इक्वल टू वॉट, dt। ठीक है, सो हम इसको पुट कर देंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x t टू द पावर n इंटू dt। t टू द पावर n मीन्स t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू फाइनल में पुट कर दो, log ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, दिस इज योर i। अब ये हो गई तुम्हारी मेथड सब्स्टिट्यूशन। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर देते तो क्या होता, देखो यहाँ पे दिस इज, यहां से हमने डायरेक्टली अगर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया तो i इज इक्वल टू, इट इज इन द फॉर्म एफ एक्स टू द पावर n इंटू 1/x क्या हुआ, एफ डैश एक्स। log x अगर fx है तो 1/x क्या हुआ, f dash x। so fx to the power n into f dash x dx, that will be directly using that result, we get directly log x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है, अगर ये रिजल्ट हमने यूज कर दिया होता, जैसे इंटीग्रल ऑफ fx to the power n into f dash x dx, तो क्या हुआ है, fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो डायरेक्टली वी यूज दैट रिजल्ट, यहां से भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो जरूरी नहीं है हमेशा यही लिखना है, जहां पे जरूरत होगी वहां पे हम लिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम डायरेक्ट रिजल्ट्स करके यूज करने वाले हैं।
ओके अब जैसे ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डायरेक्ट रिजल्ट्स को यूज करेंगे, यही रिजल्ट हमको यूज करना है। नाउ व्हाट, tan sin इनवर्स x टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, दोनों मेथड से तुम सॉल्व करो, शुरुआत के प्रॉब्लम से दोनों मेथड से सॉल्व करो, बाद में इजीली रिजल्ट से सॉल्व करना है। लेकिन अब हम रिजल्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 इंटू आई कैन राइट अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मुझे पता है अगर f x साइन इनवर्स x है तो f डैश x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई होगा। देखो ये n की वैल्यू है 3/2, तो डायरेक्टली हम आंसर लिख लेंगे। देयरफॉर साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। फिनिश, यूज दैट सीन्स लिख देंगे, सीन्स ये वाला, दैट 4 रिजल्ट्स, चारों रिजल्ट्स हमको यूज करने ही करने हैं। ओके, नाउ दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। 5/2 को लिख देंगे ऐसे 2/5। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। ओके, 1/x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारा, जो भी तुम रिजल्ट यूज करेंगे वो तुम आगे में लिखना है, तुमको आगे में लिखने का ट्राई करो हमेशा। जो जो यूज किया वो सीन्स करके लिखना है तुमको। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, सो 1 प्लस एक्स अपॉन x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमको आंसर से मतलब है। अब तुम डायरेक्टली सॉल्व करो, ये डायरेक्ट कब सॉल्व होता है, जब तुम प्रैक्टिस करेंगे हमेशा, तब तुमको डायरेक्टली सॉल्व करते आएगा। ओके, सो वी कैन ट्राई दिस अगेन। i इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स into, you can write it as 1 plus x upon x dx। 1 plus x upon x यानी क्या होगा, so integral of 1 upon sin x plus log x, ये होगा 1 by x plus 1 into dx। okay, now देखो 1 by x plus 1 is the derivative of x plus log x। x plus log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 plus 1 by x। ठीक है, सो डेरिवेटिव इज अवेलेबल, इसको लेंगे, पुट करेंगे, इसको पुट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, सॉल्व करने हैं, एक तो तुम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो, जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है उसमें हम डायरेक्ट यूज कर देंगे, जिसमें रिजल्ट यूज नहीं होता होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको, तो हम पुट करेंगे। ओके, नाउ हियर आई कैन राइट 1 अपॉन, कि ये इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये डी एक्स को उधर लेके जाना है हमेशा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, डी टी, यानी ये हो गया डी टी, ये हो गया 1 अपॉन साइन टी। सो आई शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन टी इंटू डी टी। So I is equal to integral of cosec t dt। अब cosec t का इंटीग्रेशन क्या हुआ, इट इज log of mod of cosec t माइनस cot t प्लस c। ठीक है, देख लेना, उसका वही आंसर आता है। सो I इज इक्वल टू, हम t की वैल्यू रिटर्न करना है फाइनली। सो cosec t की वैल्यू है, t की वैल्यू है x प्लस लॉग एक्स, सो कोसेक x प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट x प्लस लॉग एक्स प्लस c। ठीक है, कोसेक माइनस कॉट अगर आ गया, इसका मतलब 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, सो कॉस अपॉन 1 माइनस साइन, ये आता है, लेकिन तुमको यहां तक ही सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 3। Now there are lots of problems are here. Just we can try these problems। जैसे हमको मिलेगा 4th one, एक 4th one लेंगे,
जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम प्रॉब्लम लेते जाएंगे। x इंटू सेक स्क्वेयर, एक्स क्यूब आई थिंक, और एक्स स्क्वेयर ओके, अपॉन अंडर रूट tan क्यूब एक्स स्क्वेयर dx। Okay, so I is equal to, I can write or I can separate it first of all. So that will be, I can write it as sec square x square upon अंडर रूट की जगह में लिखूंगा tan x to the power tan x square whole power, स्क्वायर रूट में एक्स क्यूब tan क्यूब है, यानी इसका मतलब इसका पावर हुआ 3/2, tan का पावर हुआ 3/2 dx। ये जो x है ये x लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ओके, आई कैन राइट इट डाउन एज। नाउ कैन यू टेल मी द व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर? tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? ठीक है, अब ध्यान से करो, tan स्क्वायर x नहीं है, tan x स्क्वायर है। सो पुट tan x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर sec x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन में हम ये नहीं कर सकते, लेकिन डेरिवेटिव में कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट, नाउ 2 अगर उधर लेके गया और dx इधर लाया, सो x इंटू एक्स sec x स्क्वायर इज dx इज इक्वल टू, ये हुआ dt और ये हुआ बाई 2। ओके, अब ये टर्म देखो तुम यहाँ पे मिल जाएगी, इसका वैल्यू है t और t का पावर कितना हो जाएगा 3/2। ओके, सो I इज इक्वल टू वी गेट इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी dt/2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे dt/2। नाउ दिस, इसकी वैल्यू है t टू द पावर 3/2। ओके, सो 1/2 बाहर लाना पड़ेगा हमको, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर इंटू में रहेगी तो बाहर आएगी। सो 1 अपॉन t टू द पावर 3/2 को हम ऐसे लिखेंगे t टू द पावर -3/2 dt। ओके, सो दैट विल बी 1/2 t टू द पावर -3/2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c। सो देन 1/2 इंटू t टू द पावर -3/2 प्लस 1 यानी t टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2। ठीक है, 1/2, ये 2 है नहीं, ये 1/2 है, तो ये 2 कैंसिल होता है, माइनस बाहर आएगा। सो दैट शुड बी माइनस t टू द पावर -1/2, तो नीचे जाएगी 1 अपॉन t टू द पावर 1/2 प्लस c। सो दैट विल बी -1 अपॉन अंडर रूट t प्लस c, एंड दैट शुड बी -1 अपॉन t की वैल्यू डाल देना है tan x स्क्वेयर प्लस c। सो दिस इज योर I। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, now too many problems are here. We can try जितने जितने होते हैं at least we can try. Okay, so I think we tried some 10 problems from here on. Okay, next problem, number 5th direct, number 5th e to the power 3x upon e to the power 3x plus 1 dx। Now try to make the direct formula. What is the direct formula? Integral of f dash x upon fx. Try to tell me. We all know the integral of or derivative of e to the power 3x plus 1. Derivative of e to the power 3x plus 1 is e to the power 3x plus 0, e to the power 3x into d by dx of 3x which is 3,
सो इसका डेरिवेटिव होता है 3 to the power 3x अपॉन e to the power 3x plus 1 dx। अगर मैंने यहां पे 3 ले लिया तो मैं यहां पे भी 3 लूंगा, डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो मुझे ये फंक्शन fx दिख रहा है और ये f डैश x दिख रहा है। सो आई कैन टेक डायरेक्टली 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ e to the power 3x plus 1 प्लस c। हमने क्या यूज किया, इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस वॉट c। हमने ये यूज किया। सो इसका यूज करते आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज e to the power 2x plus 1, e to the power 2x plus 1 upon e to the power 2x minus 1. Now what to do in this, what to do? So e to the power 2x, अब इसका डेरिवेटिव क्या है, e to the power 2x minus 1 का डेरिवेटिव, it is 2 e to the power 2x only, not minus 1 or not plus 1. But now we can do, we can make one adjustment here, some adjustment supposed to be make here. So we can write it as, we can divide it by e to the power x. If you divided each and every term by e to the power x, what it will be? e to the power x से अगर हमने डिवाइड कर दिया सबको, each and every term को, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, then e to the power 2x को प्लस 1 को, so we get e to the power 2x upon e to the power x, that is e to the power 2x minus x, that is only e to the power x, प्लस 1 अपॉन e to the power x होगा तो 1 अपॉन e to the power minus x कर लेंगे उसको, अपॉन यहां पे भी सेम माइनस e to the power x minus x. Okay, now just try to tell by dividing e to the power x. ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर ली। What is the derivative of this? e to the power x minus e to the power minus x का डेरिवेटिव होता है e to the power x minus e to the power minus x into minus 1, यानी u plus, which is available in the numerator. So we directly write it as log of mod of e to the power x minus e to the power minus x plus c. Since क्या यूज किया, क्या यूज किया, इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन fx dx is equal to log of mod of fx plus c, ये यूज किया। ओके, और ये यूज हमको हमेशा करते आना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन fx dx is equal to log of mod of fx plus c। ये रिजल्ट बहुत गोल्डन रिजल्ट है। मैं तो कहता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट तुमको यही मिलेगा। ओके, नंबर 6 में तुमको मिलेगा e to the power x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। मुझे बताओ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुम इसको सॉल्व करेंगे तुमको कहीं ना कहीं वो टर्म मिल जाएगी। ओके, सो सॉल्व दैट, हमने अलग ही प्रॉब्लम ले लिया था। ओके, नंबर 7th वन, सो व्हाट इज 7th वन, e to the power x log of e to the power x log of e to the power x log of sin e to the power x upon tan e to the power x dx. We try all these things. I is equal to integral of e to the power x. मुझे ये बताओ log of sin e to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? What is the derivative of log of sin e to the power x? Now, नहीं समझा, पुट कर दो डायरेक्ट, ट्राई करो डेरिवेटिव निकालने का। log of sin e to the power x का डेरिवेटिव क्या, is equal to t. Differentiate with respect to t here. That will be 1 upon sin e to the power x into d by dx of sin e to the power x, which is cos e to the power x into d by dx of e to the power x, which is e to the power x, is equal to dt by dx. अब इसको ढंग से लिख दो,
cos x अपॉन sin x, cot x हुआ, cot x को और नीचे लेके आओ 1 अपॉन cot x, 1 अपॉन tan x हुआ, तो ये लिख सकते हैं हम। सो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x, इसको लिख सकते हैं अपॉन tan e टू द पावर x, ठीक है, या cos को इसके नीचे लेके आओ sin अपॉन cos, सो tan e टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। देखो ये पूरी टर्म आती 1, ये टर्म पूरी आ गई है देखो, इंक्लूडिंग दिस। सो I बिकम्स, I क्या मिलेगा, ये हुई dt, तो ये हुआ log ऑफ sin e टू द पावर t x यानी t, सो t इंटू dt, t इंटू dt, इसका मतलब टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। सो टी स्क्वेयर टी की वैल्यू पुट करेंगे लॉग ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स होल स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज यूर आई, ठीक है। चेक द आंसर्स इन द बैक ऑफ दैट एक्सरसाइज, बैक ऑफ द सिलेबस एंड ओके, lots of problems are here, lots of very useful problems are here. Okay, next one is okay, try this, sine to the power 4, sine to the power 4x cos cube x। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है मुझे सॉल्व लगता है कि तुमको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत हमेशा ज़्यादा होगा। सो आई इज इक्वल टू यूनिक प्रॉब्लम से कुछ कुछ, तो साइन स्क्वेयर एक्स होल स्क्वेयर इसको लिख सकता हूं मैं, कॉस क्यूब को लिखता हूं कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीज पे ध्यान रख दो, कॉस एक्स डी एक्स अगर लिख दिया मैंने, इसका मतलब मुझे साइन एक्स पुट करना है, साइन एक्स अगर पुट करूंगा तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी होएगा। ओके, सो साइन स्क्वेयर एक्स को मैं थोड़ा सा ट्राई कर दूंगा, मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी कर दूंगा, सॉरी कोई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे साइन टू द पावर 4x, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। कॉस को करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, दो बात मिलेंगी मुझे, साइन टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, साइन टू द पावर 6x कॉस एक्स dx। What we have to prove? We have to prove, और हमको नहीं प्रूव करना है, चलो हमको पुट नहीं करना है, सॉरी प्रूव नहीं, पुट नहीं करना है, हम सेपरेट करेंगे, ट्राई करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने की ट्राई करेंगे। साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल सेपरेट करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे। देखो यहां पे मिलेगा साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, सो यहां पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, दैट इज एफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये देखो अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, तो i इज इक्वल टू इट विल बिकम साइन एक्स टू द पावर 5 by 5 minus sin x to the power 7 by 7 plus what, c, this is your I, we use, since we use integral of fx to the power n into f dash x dx is equal to fx to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So we use that result, we use that result. Okay, so this is the problem number 9. Okay, one more, 1 upon 4x plus 5x to the power minus 11, 1 upon 4x plus 5x to the power minus 11 dx. Okay, सो i इज इक्वल टू, माइनस को प्लस कर दो उसको, सो 1 अपॉन, एक काम करेंगे 4x प्लस 5x टू द पावर माइनस 11 यानी 5 अपॉन x टू द पावर 11 dx, नीचे के नीचे सॉल्व कर देंगे।
क्या होगा? सो इन द डिनोमिनेटर वी गेट दैट इंटीग्रल ऑफ, इसको सॉल्व करो, 4x टू द पावर दिस 4x इंटू एक्स टू द पावर 11, सो 1 अपॉन 4x टू द पावर 12 प्लस 5 अपॉन x टू द पावर 11, तो अपॉन नहीं लिखता मैं, ऊपर लिखता हूँ x टू द पावर 11 dx. देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, 4x टू द पावर 12 प्लस 5, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 4x टू द पावर 12 प्लस 5? ठीक है, अगर उसका डेरिवेटिव पता हो डायरेक्टली तो एडजस्टमेंट कर दो. सो i इज इक्वल टू व्हाट वी गेट दिस 4x टू द पावर 12 प्लस 5 का डेरिवेटिव. सो इसका डेरिवेटिव होगा 4 इंटू 12 इंटू एक्स टू द पावर 11 प्लस 0, 4 इंटू 12 दैट इज 48. सो हमको x टू द पावर 11 भी चाहिए, यहाँ पे 48 चाहिए, तो आई कैन राइट 48 हियर एंड 1 अपॉन 48 हियर dx. नाउ वी यूज दैट प्रॉपर्टी. ये हो गया fx, तो ये क्या हुआ f डैश x, बरोबर. सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द आंसर? सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 log of mod of 4x to the power 12 plus 5 plus c. Okay, then too much problems are here. In the next one, in the 11th one, you can put what you can put. मैं बता देता हूँ क्या क्या पुट करना है. x to the power 9 into sec square x to the power 10. x to the power 10 दिखता है, पुट करो t, तो क्या होगा 9 into 10 into x to the power 9 dx is equal to dt. So x to the power 9 dx is equal to dt by 10. So ऐसे करते करते आएंगे. ओके, 12th वन एक सॉल्व करना है, और 12th को भी मैं दे देता हूँ. वहाँ पे e टू द पावर 3 log x है, 3 log x है, तो देख लेते हैं. e टू द पावर 3 log x into x to the power 4 plus 1 to the power minus 1, I think yes, dx. So I is equal to integral of इसको लिखेंगे मैं 3 e टू द पावर 3 log x को लिखूंगा log of x क्यूब अपॉन, ये अपॉन माइनस 1 तो पावर नीचे आ सकता है वो, सो x टू द पावर 4 प्लस 1 dx. ये देखो जहाँ पे बेस नहीं है वहाँ पे e है, और एक लॉ यूज़ कर सकते हैं हम, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx. ठीक है, अब x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है, 4x टू एक्स क्यूब प्लस 1 का 0, तो 4 नहीं है तो 4 ला लूंगा, 4 अपॉन 4. सो i इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू, यूज दैट प्रॉपर्टी अगेन. सो व्हाट इज log of mod of x to the power 4 plus 1 plus c. So this is your I. So बहुत ही थोड़े सिंपल, थोड़े डिफरेंट, कुछ अलग है, कुछ प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट है, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो. ओके, सो ट्राई दीज प्रॉब्लम्स, यू कैन मेक दैट प्रॉब्लम्स. और कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लगेंगे कि मुझे सॉल्व करना चाहिए, वो मैं इस नेक्स्ट इसमें करके दूंगा. ओके, सो अब तक के लिए वही ठीक है. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. इस एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट होगा उसके साथ में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. ओके, थैंक यू.